کراچی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید 3 رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء نے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے، جہاں انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ رات رینجرز کیمپ پر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ 3 خارجی ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ گرفتار خارجی افغان شہری ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 3 بہادر سپور شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے پاکستان رینجرز سندھ کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ مین گیٹ پر دھماکے کے بعد حفاظتی حصار توڑنے کی کوشش کی۔ رینجرز کے چوکس اور پرعزم جوانوں نے فوری جواب سے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہادر جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کا اظہار۔ کہا، قوم کی حفاظت کے لیے یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ رینجرز کیمپ پر حملے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دہشت گرد کہیں بھی ہوں ان کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا، بھارتی اسپانسر دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کریں گے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، رینجرز کے بہادر جوانوں نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے رینجرز کیمپ کا دورہ کیا، جہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گرد حملے کی مذمت، فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا، وطن پر جانیں نچھاور کرنے والے شہداء کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ دہشت گردی کے ہر فتنے کا پوری قوت سے خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رینجرز کیمپ پر دہشت گرد حملے کی مذمت، دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید رینجرز کے جوانوں کے لیے سندھ اسمبلی میں فاتحہ خوانی۔ آبنۂ ہرمز کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ امریکی حملے آبنۂ ہرمز کی مکمل بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ بغداد میں عراقی ہم منصب سے پریس کانفرنس میں عباس عراقچی نے کہا، امریکہ سے معاہدے کے تحت آبنۂ ہرمز میں میری ٹائم ٹریفک کی بحالی کی مکمل ذمہ داری صرف ایران کی ہے۔ رکاوٹیں ہٹانے اور انتظامی اقدامات کے بعد آبنۂ ہرمز 30 روز میں اپنی سابقہ صلاحیت پر بحال ہو جائے گی۔ تمام فریق طے شدہ معاہدے کی پاسداری کریں۔ لبنان میں جنگ بندی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ اسرائیل کو حملے روکنے اور لبنان سے انخلا پر مجبور کرے۔ امریکی صدر کی پھر ایران کو دھمکی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، سبق نہ سیکھا تو ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران کے خلاف کارروائی کی۔ امریکی طیاروں نے ایران کی میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں میزائل، ذخیرہ گاہیں اور ساحلی ریڈار سائٹس ہدف بنی۔ ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز پر کشیدگی برقرار، امریکی فوج کی ایران میں فضائی کارروائی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے، صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران میں متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کو سنگاپور کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد معاہدے کی پاسداری کا موقع دیا تھا۔ ایران نے پاناما کے آئل ٹینکر کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائی ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں پر مسلسل حملوں کے جواب میں کی گئی۔ آبنۂ ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکی افواج مکمل طور پر چوکس اور کسی بھی ممکنہ جوابی کارروائی سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے،
कुवैत और बहरीन में अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। आने वाले दिनों में अमरीकी अड्डे सख्त नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी हमले आबना हुर्मुज पर हमारी बढ़तरी खत्म नहीं कर सकते। कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निजाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। बहरीन में खतरे के पेश नजर सायरन दोबारा फाल कर दिए गए। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। पासदारान इनकलाब ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। दागे गए मिसाइल पर फारसी में अमरीका के नाम पैगाम और नौमौलूद की तस्वीर लगी है। पैगाम में लिखा है ट्रंप की कामयाबी ये है कि इस नाकाम जंग में अमरीकी फौजियों के लिए ताबूत बनाने और व्हील चेयर तैयार करने वाली कंपनियों की आमदनी बढ़ गई है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम फरीकों पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह का राब्ता काया कलास ने कहा राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फरीकों पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया। काया कलास ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद से राब्ता। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज नईमुर रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने वफ्द के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। दोनों का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कश्मीर के ये हालात हादसाती हैं, जज्बात के बजाय अक्ल दानिश से काम लें। हमें अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। कश्मीरियों से भी गुजारिश है मुस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इक़दामात ना करें। हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। हुकूमत ऐसे लोगों को साथ ले जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। हाफिज नईमुर रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास से भी मिले। इस्तीफे ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज तो उठाएं। आप विफाक का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। वजीर आला सिंध कायम कियम को मशवरा। असेंबली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा अपोजिशन वाले कहते हैं 18 साल का हिसाब दो, हम अवाम को हिसाब दे रहे हैं जब भी वो ज्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। कहा गया मुस्तफा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए, मैंने तलाश किया तो मुझे सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफा कमाल से कहीं ज्यादा काम पहले और बाद में भी हुआ। मुस्तफा कमाल को विफाक ने सपोर्ट किया था लेकिन अब विफाक सपोर्ट नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफा लाएं। बदले में एमक्यूएम अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं बिजली है न गैस और न पानी, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन अवैस विर्क की हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मारने की कोशिश, स्पीकर को वक्फा करना पड़ा। अपोजिशन का हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मुअत्तल करने का मुतालबा। 40 मिनट वक्फे के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा दोनों इतराफ से तकलीफ दे बातें की गई। पहल एहसन रजा खान ने की, अपने अल्फाज वापस लें और माजरत करें। एहसन रजा खान और अवैस विर्क दोनों ने माजरत की। बंद कमरों की पॉलिसी नाकाम हो चुकी, अब हमारी अपनी पॉलिसी चलेगी। वफाक से मामलात उठाए हैं, अपना हक हर तरह से हासिल करेंगे। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा गैस की पैदावार वाले सूबे में सीएनजी स्टेशंस बंद करना वफाक का इम्तियाजी सुलूक है। पेशावर समेत सूबे भर में तरक्याती काम जारी हैं। ऐवान में नून लीग के एमपीए ई सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। पीपी के अहमद कुंडी का एतराज,
स्पीकर ने नोटिस ले लिया। जलाल खान ने माजरत कर ली, कहा कोताही पर पूरे ऐवान से माजरत ख्वाह हूं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 121 अरब 47 करोड़ रुपए से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर किया। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। RLNG कनेक्शन जल्द खोल दिए जाएंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जैसे ही $76 की सतह पर आएगी, आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फार्मूला था, कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फायदा, इससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी आरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जाँ बहक हो गए। आरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर 4 माह की बंदिश के बाद गुज़श्ता जुमे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। नारोवाल में खातून के कत्ल का मुकदमा शौहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज। मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है निदा शाहीन की 3 माह कबल हमाद सुहेल से शादी हुई थी। शौहर अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाकर निदा को घर से निकाल देता था। मुलजिम ने अहले खाना के साथ मिलकर बीवी को गला दबाकर कत्ल किया और लाश जला दी। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक अली जमील की नमाज जनाजा कराची में अदा। 2 रोज कबल रास्ता भटकने पर खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में क्वेटा आ रहे थे। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चियां महफूज रहीं। मुआवन वजीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं वाक़े से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कराची के इलाके मनोड़ा के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त 27 साला जुबैर और 18 साला जोहेब के नामों से हुई। लाशें निकाल ली गई। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जिद्दोजहद में अहम पेशरफ्त। 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है। पहली बार 12 में से 11 नमूने मनफी आ गए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। आइंदा माह कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। काउंसिल हॉल में KMC का बजट इजलास। मेयर कराची की आमद पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान के नारे। मुर्तजा वहाब ने इजलास से खिताब में कहा KMC की साइट्स और सड़कों से चार्ज पार्किंग खत्म कर दी। जो टाउन पार्किंग के पैसे ले रहे हैं वो गैर कानूनी है। जो पैसा ले रहा है उसको पकड़ने के लिए मेरा साथ दें। KMC अगले माली साल से मुकम्मल डिजिटल अदायगियों का निजाम मुतारिफ कराएगी। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन कार्ड का इजरा किया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के इक़दाम तेज कर दिए। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान में लिथियम बैटरी की तैयारी के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। वजीर आजम के मुअव्वन खुसूसी हारून अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा लिथियम आयन बैटरियों की मकामी तौर पर तैयारी पाकिस्तान में नए सनती शोबे की बुनियाद बनेगी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सलाहियत का ये हसीन इम्तजाज सनती तरक्की के नई राहें खोलेगा। सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कवानीन में तरमीम कर दी। मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन की हद 40,000 रियाल मुकर्रर। इससे पहले सऊदी अरब जाने और आने वालों के लिए यह हद 7,000 रियाल थी। कानून में तरमीम के बाद सऊदी अरब आने जाने वालों को अशिया की मालियत 40,000 रियाल से तजावुज करने पर पेश की डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा।
وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی، 3000 سے زائد افراد زخمی، 69,000 لاپتہ۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل۔ اب تک 430 آفٹر شاکس محسوس کیے گئے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ ساحلی ریاست لاگویرا میں ملبے سے 2 خواتین کو زندہ نکال لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں فیلڈ اسپتال قائم کر دیے گئے۔ یورپی ملکوں میں شدید گرمی کی لہر۔ اسپین میں 5 روز کے دوران گرمی کے باعث اموات کی تعداد 327 ہو گئی۔ جرمنی میں درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے لوگوں کو گرمی سے بچانے کے لیے کینن سے پانی برسایا۔ فرانس میں گرمی سے 109 افراد لقمہ اجل بنے۔ پیرس میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جرمنی اور اٹلی سمیت کئی یورپی ملکوں میں سیاحتی مقامات بند ہیں۔ مسجد نبوی میں نمازیوں کے لیے جدید کولنگ سسٹم فعال کر دیا گیا۔ سسٹم کی مجموعی صلاحیت 19,300 ریفریجریشن ٹن سے زائد ہے۔ کولنگ سسٹم مسجد کے اندرونی حصوں اور ستونوں کے نیچے نصب کیا گیا۔ اور امریکہ اور میکسیکو نے خطرناک کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے مکھیوں کی فوج تیار کر لی۔ سرحدی علاقوں میں ہر ہفتے 10 کروڑ جراثیم سے پاک مکھیاں چھوڑی جائیں گی۔ یہ مکھیاں خطرناک کیڑوں کی افزائش روک کر مویشیوں کو بیمار ہونے اور ہلاکت سے بچانے میں مدد دیں گی۔ میکسیکو میں اب تک 30,000 سے زائد جانور خطرناک پیراسائٹ سے متاثر ہو چکے ہیں۔